Hello, everyone. Health Patrol is back with Heartcare Foundation India and Dr. Beena Bansal. To give a small introduction to our guest, Dr. Beena Bansal is an eminent endocrinologist who has worked with institutes such as Medanta, MedCity, and is founder director of Door to Care, an endocrine and diabetic clinic that she will share her insights and expertise on various aspects of the pandemic and our preparedness for the next wave. Welcome on the show, ma'am. It's a pleasure to have you here. Thank you so much. Thank you. To start with, we have little information and then a question. China is witnessing biggest outbreaks in months. France is battling the fourth wave, and countries around the world are under lockdown due to increase in breakthrough infections and rise in Delta variant cases. Even countries like US that have enough vaccinated individuals are struggling in states of Florida to manage the daily admissions. While the surge in number of cases in Kerala is worrisome, cities like Bhubaneswar are setting records by 100% vaccination of 100% eligible people. What does that say for India? Are we aping the West or are we prepared for the third wave? How bad do you think a third wave can hit us? Okay. Um, s- so, it's easy to predict things. Hi, hello. Yes, ma'am. Yeah. So, if we see the pattern from the first and the second wave, I think we have been following patterns from West as well. So, there was a trend that it first came to US, UK, and then we followed that pattern. So, and same thing happened in the second wave. So, it wouldn't be a surprise, and considering we are all so connected globally, it's just a matter of time that we start aping the West, if that's the word. We're not like we're following the same trends. So it's happening one by one each country. So I don't think there is any reason to now be more optimistic about it and say that we will not be following the same pattern, because I think that is happening. People are getting assured. The vaccination rates are still very, very low in India. Kerala somehow has not been able to uh, control. So the trends there, and again, initially last and the before that wave also, the trend started in one or two states, and then it did spread throughout. So I think there is a possibility. Of course, it would depend much on our behavioral factors. So there are many possibilities, and it's our decisions which will help, which will choose one of those, which of those possibilities turn true. There may be a possibility that we don't have a big huge tsunami kind of a wave, maybe a just small increase, and then we tackle that. But it completely depends on whether we are following all those behavioral things, because as of now the vaccination rates are really low. We have not achieved herd immunity. We may be feeling that a lot of us are already infected, but that is not a guaranteed safety from second or third infection. So yes, I think we may have a wave that the uh, amplitude of the wave will be determined by our choices which we make. Our expert has a very optimistic message. She says that there is a possibility that we might not have an effect like that we see in the West. And that takes me to a next question, ma'am. The way you mentioned, Kerala has recorded 3.4 million infections and 16,837 deaths from COVID so far. After Kerala, COVID spiked now in Karnataka and Tamil Nadu. What message does that hold for other states of India? It is a clear warning. It is a warning that this is probably too early to be really relaxed and open up things like that has been happening all throughout. Uh, so we should, even though there may not be an enforced lockdown, people should be very careful about their behavior. So I think it does tell us that the trend can happen in other states as well, and probably it will happen if we are not careful enough. So um, all the safety measures, not going out unnecessarily, maybe avoiding too much of travel, because uh,
within state travel is happening, and there is a high chance of the whole country being affected pretty soon. So our expert says please avoid unnecessary travel and take as much precautions as much possible from your side. Ma'am, there are people who are asking us to speak in Hindi. So if Acha. that mode of if that mode of communication is comfortable with you, that would be great. Then my next question is, Sweden government said a large part of population is likely to be offered a third COVID vaccine dose in 2022. So what do you think about the booster shot of vaccination? Yes. So I think ये बात तो सही है कि अभी तक हमें पता है कि 2 वैक्सीन शॉट्स कितनी इफेक्टिव है, लेकिन रियल लाइफ में वो शायद इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रहेगी और कुछ समय बाद वो वापस से इफेक्टिवनेस कम होने के चांसेस हैं। थर्ड और मे बी हर साल के शॉट्स जैसे इन्फ्लुएंजा में होते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए अभी तो खैर पहला और दूसरा शॉट ही हमें कवर करना है। आई थिंक थर्ड शॉट इंडिया में ऑफर करना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा जब तक कि सारे लोग सेकेंड शॉट नहीं रिसीव कर लेते। तो एक मिनिमम लेवल जब तक सब लोग को नहीं मिलता, केवल कुछ लोग एक्स्ट्रा शॉट्स लेके, ये इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड है ना। तो हम अगर सोचते हैं कि हम वैक्सीनेटेड है तो हम पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, ऐसा नहीं है। ये एक सोशल बीमारी है, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। जितने हायर परसेंटेज वैक्सीनेट होंगे उतना अच्छा है। तो 2 शॉट ज्यादा परसेंटेज में हो बजाय इसके कि 3 शॉट कम लोगों में हो, आई थिंक दैट मेक सेंस। लेकिन आगे इन फ्यूचर प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हर साल बूस्टर्स, या बिकॉज वैक्सीन प्रोबेबली लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है। वो हमें देखने से और स्टडीज ही हमें बता पाएंगी, बट दैट इज व्हाट द इनिशियल indications are. A beautiful message has been given by our expert. The need of the hour is to vaccinate more number of people rather than giving them the third booster shot. Ma'am, my next question to you is, we have received 31.5 lakh doses of component 1 and 4 lakh doses of component 2 of Sputnik V. मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास 31.5 लाख डोजेस स्पुतनिक 1 के कंपोनेंट 1 के आ गए हैं और 4.5 लाख डोजेस कंपोनेंट 2 के हो गए हैं। और हमें पता है कि स्पुतनिक वी 91.6% हमें प्रोटेक्शन देती है कोविड के अगेंस्ट, और हमारे लोकली मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और इंडिया में बोला जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर तक हमें स्पुतनिक वी मिल जाएगी। और गवर्नमेंट कह रही है कि दे वांट टू मिक्स द जैब्स, दे वांट टू मिक्स दे वांट टू मिक्स द वैक्सीन्स। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वैक्सीन कॉकटेलिंग पर? कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि कॉकटेल वैक्सीन से इफेक्टिवनेस ज्यादा है। आई थिंक वो इट मेक सेंस। थोड़ा और डेटा आएगा तो मेरे ख्याल से ये रिकमेंडेशंस बन ही जाएंगे। तो अगर पहले, अभी तक तो हम वही सेम वैक्सीन सेकेंड वाला डोज रिपीट कर रहे हैं, जिसने पहला जो लिया है वही सेकेंड ले, लेकिन जैसे अगर न्यू वैक्सीन अवेलेबल होंगे जो मे बी ज्यादा इफेक्टिव हो, मे बी कुछ वेरिएंट्स के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव हो, तो फिर हमें कॉकटेल वैक्सीन के ऑप्शंस भी अवेलेबल होने चाहिए डेफिनेटली। मैम, ये कॉकटेलिंग किस चीज पर डिपेंड करता है? कॉकटेलिंग हमारे जो पहले गेस्ट आए थे, हाँ हमारे जो पहले गेस्ट आए थे उन्होंने बोला कि सब वैक्सीन अलग तरीके से मैन्युफैक्चर होती है, तो क्या कॉकटेलिंग वैक्सीन की उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है और कौन सी एक वैक्सीन के दूसरी वैक्सीन के साथ जा सकती है, या फिर हम कोई भी वैक्सीन किसी भी वैक्सीन के साथ हम मिक्स कर सकते हैं? आई डोंट थिंक ऐसा, अभी तक इतने सारे ट्रायल्स हैं और मुझे इतनी टेक्निकल जानकारी वैक्सीन प्रोडक्शन और कौन सी किसके साथ कॉकटेल होती है ये आइडिया नहीं है। पर मुझे लगता है जैसे स्पुतनिक 5 का लोग प्लान कर रहे हैं कि इवन आफ्टर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वो ले सकते हैं क्या, ऐसा। बट इसके पीछे क्या बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, कौन सी किसके साथ जाएगी, इसका मतलब आई थिंक वी हैव टू आस्क सम अदर एक्सपर्ट if there is any detail there.
Ma'am, I'll take you to our next question, which is according to a report in Washington Post, the Delta variant is behind the spike, causing increased hospitalization and depleting oxygen supplies. The report said that the highly transmissible version of coronavirus is fueling a wave of suffering across the region, also including Thailand, Vietnam, and Malaysia, where vaccine rollouts lag behind, and the tabahi that was caused during the second wave due to poor healthcare infrastructure doesn't even need a mention. How shall India prepare well to handle the subsequent casualties? Will a third wave hit be deadlier this time? वेरिएंट्स डेल्टा वेरिएंट हम अभी मतलब शुरुआत इंडिया से ही हुई, अब सारे वर्ल्ड में फैल गई है, तो एक तरह से हम डेल्टा वेरिएंट को एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन ये एक ही वेरिएंट पे स्टॉप नहीं होती है। ये वायरस जितने ज्यादा लोगों में फैल रहा है उतने ज्यादा उसमें नए नए म्यूटेशंस आते जाते हैं, है ना। उसमें से कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो वायरस को कुछ सर्वाइवल बेनिफिट देते हैं, मतलब जैसे डेल्टा वायरस आया और उसकी स्प्रेड होने की कैपेसिटी दूसरे वायरस से ज्यादा थी, इसीलिए वो फटाफट पहले वाले वेरिएंट्स को रिप्लेस करता गया, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है। हो सकता है कोई और वेरिएंट आए जिसके और कुछ प्रॉपर्टीज हों और उससे थोड़ी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी कम होने लगती है। तो ये पॉसिबिलिटी, जितने ज्यादा लोग वायरस से इन्फेक्ट होते हैं उतनी वेरिएंट्स के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो पहला चीज ये है कि हमें हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन हो, हमें हो सकता है वैक्सीन हो गया है, ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन ना हो, या हम उस वल्नरेबल ग्रुप में नहीं है, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो इन्फेक्ट हो रहा है वो वायरस को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ज्यादा स्प्रेड होने की, ज्यादा सर्वाइव होने की, थ्रू इंड्यूसिंग म्यूटेशंस। सो नंबर वन, आई थिंक सबसे पहला तो वैक्सीनेशन ड्राइव तो चल ही रही है, एंड इंडिया आई थिंक इज गोइंग ऑन क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑन दैट, और वो considering all the issues with a big populated country, I think vaccination drive के अलावा एक बहुत important vaccination है social behavior। मुझे लगता है कि उस पर हम जितनी एम्फेसाइज करें उतना अच्छा है, क्योंकि वो ही एक तरीका है फिलहाल, जब तक वैक्सीन होने में बहुत समय लगेगा, वो हमारा एक छोटा सा मेजर है। इवन आफ्टर वैक्सीन हमें इन्फेक्शन की संभावना है, डिजीज नहीं होगी लेकिन इन्फेक्ट करके हम स्प्रेड फिर भी कर सकते हैं, तो हमें पूरे प्रिकॉशंस रखने हैं जितने संभव हो सके। मिनिमम इंटरेक्शन विद अदर पीपल, हम मास्क पहन के इंटरेक्ट करें लोगों से, अननेसेसरी ट्रैवल कम से कम करें, नहीं तो थर्ड वेव की संभावना है। आप ये एक्सपेक्ट करो कि एकदम से वेव आ जाए और एक साथ बहुत सारे लोग इफेक्ट हो जाएं और फिर भी हॉस्पिटल्स प्रिपेयर्ड रहें, ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। द रीजन वाई सोशल बिहेवियर्स आर सजेस्टेड, हमें इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर हम इन्फेक्ट भी होए तो धीरे धीरे ओवर अ टाइम होए तो हॉस्पिटल्स आराम से संभाल लेंगे। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन संभालने में दिक्कत नहीं है। एकदम से अगर आप 100 की जगह 1 लाख लोग इफेक्ट हो जाएं तो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं कि हमें नेसेसरी दवाइयाँ या ऑक्सीजन सप्लाई की डेफिशिएंसी होने लगती है, और एकदम से वो एक्सपोनेंशियली उसकी मोर्टालिटी बढ़ने लगती है। तो ये हमारे हाथ में है, और आई थिंक हेल्थ केयर कैपेसिटी एक लिमिटेड लेवल तक ही हम धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, बट आई थिंक हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो हेल्थ केयर कैपेसिटी पे एकदम से सडनली बहुत सारा बोझ नहीं आए, उसके लिए केयरफुल रहे। सो सोशल बिहेवियर्स आर अ मस्ट, दैट इज द ओनली प्रिपरेशन। अदरवाइज एनी वेव दुनिया में कहीं पे भी हो रही है, आप देख रहे हो कि हेल्थ केयर कैपेसिटी इफेक्ट, मतलब उसकी एक लिमिटेड क्षमता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ से यहाँ करोगे और फिर भी वो ऐसी स्पाइक आएगी, यू कैन नॉट टेक इट टू 100 टाइम्स लेवल्स। वो स्पाइक को हमें फ्लैटन करना है, जो फ्लैटन द कर्व हम कहते हैं, वो जरूरी है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कोशिशें चल रही हैं उसका हम फायदा ले सकें, हम उसको ओवरवेल्म ना करें जब भी हो सके। So virus keeps mutating, and we cannot put all the burden that we might face on the healthcare capacity or the healthcare infrastructure. It is our social responsibility, and I hope that you all got the message. Please wear mask. Please travel safe. If possible, do social distancing. That is what our expert has also mentioned. I hope we all will follow it. Ma'am, this brings me to our next question.
at least 125,000 fully vaccinated Americans have tested COVID positive, and 1,400 of those have died, according to data collected by the NBC News. Why are these breakthrough infections happening? जब हम वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपने देखा होगा सब बात करते हैं स्पाइक प्रोटीन की, है ना। स्पाइक प्रोटीन के द्वारा वायरस हमारे सेल्स में एंटर करता है, एपिथेलियम से अटैच होता है और सेल्स पे एंटर करता है। तो जो ये डेल्टा वायरस, ये स्पाइक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है। जो डेल्टा वायरस है उसमें वो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो एक फूल के जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें 3 कंपोनेंट्स है और वो ओपन हो जाता है डेल्टा वायरस में, और वो ओपन होके ज्यादा अच्छे से अटैच होता है, तो वो उसकी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और दूसरा, म्यूटेशंस कुछ ऐसे स्पॉट पे हैं जहां एंटीबॉडीज उसको ठीक से ब्लॉक नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाती है विद द वेरिएंट। हैविंग सेड दैट, वैक्सीनेशन से फिर भी ओवरऑल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी कम हो रहा है। तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला, वैक्सीनेशन से सीवियर इलनेस के रेट्स सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। वो ऑल ओवर वर्ल्ड प्रूव हो रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें डेथ के चांसेस कम है, उनमें आईसीयू एडमिशन के चांसेस कम है। फिर डेटा देखा गया कि उनमें इन जनरल सिम्टोमेटिक डिजीज के चांसेस नॉन वैक्सीनेटेड के मुकाबले कम है। इन्फेक्शन रेट्स शायद उतने ही हो सकता है वो इन्फेक्ट उतने ही तेज या थोड़ा सा उसमें भी फर्क आ रहा है। इवन इन्फेक्शन रेट्स कम है, लेकिन डेफिनेटली आपको सिम्टम्स आने के और हॉस्पिटल में एडमिट होने के, आईसीयू शिफ्ट होने के चांसेस प्रोग्रेसिवली काफी कम हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो ही रहे हैं, लेकिन इट इज स्टिल रिड्यूसिंग सिवियरिटी ऑफ डिजीज। So vaccinations are effective. The message should not be that they are not effective. In fact, अगर ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएगा। So it also depends on overall herd में कितने लोग, पूरी कम्युनिटी में कितने लोग। आप, ये एक बीमारी है जिसमें आपको अपने अलावा अपने पड़ोसियों की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब सब लोग ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, दैट इज द रूल। अगर हम सिर्फ वैक्सीनेटेड हैं, बाकी सब नहीं है, देन वो वैक्सीन, इवन वैक्सीनेटेड लोगों के इन्फेक्ट होने की चांस बढ़ जाते हैं। तो जिन जगहों में ओवरऑल वैक्सीनेशन रेट्स कम है, वहाँ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इफ ओवरऑल हम ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो हमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कम होगा। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन्स रिस्पॉन्स। तो लोग कभी कभी इस डर से वैक्सीनेट नहीं होते कि फायदा क्या है। ऐसा नहीं है, फायदा है, उसके लिए जरूरी है कि हम सब वैक्सीनेट हो। तो आप भी वैक्सीनेट होएंगे तो आप बहुत सारे और लोगों को भी बचा पाएंगे, इसलिए हर किसी को वैक्सीनेट होने की जरूरत है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पर नीड है कि हम सब वैक्सीनेट होए, क्योंकि वैक्सीनेशन से आईसीयू में जाने का खतरा काफी कम हो जाता है। और नीड है कि हम सब सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, पर अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचे, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाए। Ma'am, my next question, that you were referring to herd immunity right now. The World Health Organization has long back ruled out herd immunity strategy as a response to COVID-19 pandemic, and they have called it ethically problematic. What is your point of view? Why have they mentioned that it can be ethically problematic? So herd immunity through infection is problematic. जैसे बीच में पहले शुरू में यूके का अप्रोच ये था कि ज्यादातर लोग अगर इन्फेक्ट हो गए, बिकॉज दे वर स्लोअर एंड दे हैड अ लेट रिस्पॉन्स टू लॉकडाउन्स। द आइडिया वाज कि ज्यादातर लोग इन्फेक्ट हो गए, माइल्ड इन्फेक्शन होगा और ज्यादातर ठीक हो जाएंगे। द प्रॉब्लम इज कि अगर उस 100 में से 90 लोगों को माइल्ड होता है तो 10 लोगों को सीवियर इन्फेक्शन होता है, और अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो ये नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी हाई होते हैं, एंड अगेन दैट थिंग कि वो कर्व बहुत स्पाइक हो जाता है। और फिर जैसे ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड होने लगता है तो ये 10 के 20 लोग और 30 लोग जल्दी जल्दी सिक होने लगते हैं। तो द prognosis becomes worse when more people get infected together. इसीलिए ये मान के कि ज्यादातर बीमारी माइल्ड है, शुरू में ऐसा यहाँ पे भी बहुत लोगों का कहना था कि थोड़ा ही सर्दी जुकाम ही तो है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सर्दी जुकाम किसी और की सीरियस बीमारी बन जाती है कि हम वो सर्दी जुकाम ही फैला रहे हैं। तो द प्रॉब्लम, एथिकल प्रॉब्लम्स विद हर्ड इम्यूनिटी इज दैट एवरी पर्सन हु गेट्स इन्फेक्टेड is one of the chain reaction towards someone who can have a very serious infection and death, because we become part of that chain. We are handing over virus from one to another person, तो हमें वो chain reaction break करना जरूरी है। तो herd immunity through infection is problematic.
वैक्सीनेशन के थ्रू प्रॉब्लमैटिक नहीं है. देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग हर्ड इम्यूनिटी. वन इज थ्रू इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन, एंड वन इज थ्रू वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन का फायदा यही है ना कि उसमें हमें बीमारी नहीं होगी, फिर भी हम इम्यून हो जाएंगे. सो दैट इज द वे वी वांट. इसलिए वो वर्ड जो शुरू में जिस पर्सपेक्टिव में यूज किया गया था वो ये था कि ज्यादातर लोग तो हर्ड इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट हो जाएंगे. लेकिन उसका दूसरा प्रॉब्लम भी है. जब हम नेचुरल इन्फेक्शन से हर्ड इम्यूनिटी लेने की कोशिश कर रहे थे, ये देखा गया कि वायरस तो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा है. आपको उसी वायरस से, बदले हुए वायरस से दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं. सो देयर वर प्रॉब्लम्स विद दैट कंसेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी. That is still there. So we do not want to be infected even if हमें कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी हमें इन्फेक्शन से बचना है. So we would like to achieve herd immunity, but mutation of virus is causing trouble. And secondly, it is the way we will achieve it. Achieving herd immunity through natural way seems a bit impossible, but through vaccination there is a possibility, but it is very stark. Ma'am, my next question to you. Top US infectious disease expert Anthony Fauci has said that Delta variant has been detected around 100 countries globally and is now the dominant variant worldwide. US cases of COVID 19 are up by 70% over the previous week, and deaths are up by 26%, with outbreaks occurring in parts of the country with low vaccination rates, US Center for Disease Control has mentioned. And the highly transmissible Delta variant of coronavirus is also spreading in Sri Lanka, and it has compromised around 30% of the new cases reported in Colombo. What can you say about the Delta variant? How can India deal with it, and what kind of precautions shall we take? I think the infection which was there during the second wave was probably predominantly Delta virus, the way it spread across. We do not have as many genomic sequencing facilities, which are now increasing. So we will have more and more data maybe next time whenever anyone is infected. But Delta virus has been the predominant variant probably for some time in India also. The last wave was probably because of that only. It is still a highly infectious form of, more infectious form of coronavirus from the previous one. This one had a higher transmissibility, probably more severity as well. So having one infection doesn't give complete protection against another. There is little less of vaccine efficacy and more breakthrough infections. So there are a lot of problems with this virus. 1, 2, 3, 4, 5. It's more transmissible, probably more severe, less vaccine protection. So yes, I think there is a need for concern. It is therefore these are called variants of concern, and therefore it is important that even vaccinated people keep maintaining all those precautions. So mask and crowding to be avoided, social distancing, all those precautions have to be maintained maybe for a long enough time now, maybe a few months definitely. It's too early to go out on vacations. I think we have to be a little more patient for some more time so that this variant just disappears from our system. It's still roaming around, so I think we have to be careful. So the final message that has rolled out is that we need to take precautions even if we are vaccinated and wear masks. That seems like the ultimate solution right now. Ma'am, my next question is France is battling with fourth wave. So what do you have to say about the possibilities of subsequent waves? So there are many different possibilities which epidemiologists have put forth. There are like multiple. So there was a study in which they had 8 different possible fates of viruses. And one of this, and maybe many people agree with this, that every season or every year there may be a small and smaller and smaller wave, that this may persist as something like influenza, or maybe even as an endemic kind of a thing, infecting, creating mild infections in children and all. So there is a possibility of having waves, probably
4th or 5th or 6th, we do not know. Maybe there will not be, but as of now, I think it seems possible that we will continue to see some spikes during certain seasons. Very difficult to predict. So, but that is one of the possibilities which have been kept forth. So So, subsequent waves are a possibility. That is what our I expert think is the saying. trials are going on to have a super vaccine. That was the word, which will be able to Yeah. deal with all different kinds of coronavirus. So, and tr- uh, we are hoping for the best. I think there will be some better versions of vaccines pretty soon. Till that time, we'll keep needing booster doses. We'll keep needing to keep all these precautions, and as case wise case, maybe isolating those cases and contact tracing the ways to kind of carry on with our normal lives. So that's there. Ma'am, right now you just mentioned about children. We are all aware how second wave really infected the youngsters. What do you think about the third wave? Will it be infecting children more? There are studies which says that risk of children being infected from the virus is very less. Is this information true? So infection is same, disease. The percentage of kids who will be diseased as of now is less. Even during second wave, that is what my pediatric friends told me. That this. So in general, overall, because the rates were high, therefore children were also affected. But as a percentage of overall infection, the percentage of children infected were diseased were much less. Many were infected because overall all household people were this time during second wave. If one person in the household was infected, the chances that everyone would be infected was pretty high. But the disease rates were still lower in children, and severe disease is still much lower. So I don't think we should be in that panic mode. But right now, because those are the vulnerable groups, vaccination is still due in children. So therefore, I think parents are very concerned about this fact. But yes, that is true that as of now, disease rates are much less in kids. So there is a difference between infection and disease. I am changing them, using them like that. So infection is getting infected with the virus. But when we manifest symptoms, that is when we call it disease. So a person may be infected but not disease. And that happens with kids. सो हमारी एक्सपर्ट ने बोला है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. चिल्ड्रन में इन्फेक्शन हो सकता है बट डिजीज की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है. So this is a quite an optimistic message. I hope that all parents right now are feeling relieved. Ma'am, before we move to our rapid fire, I would like to take some questions from the audience. First, people are giving you their regards. Then there is a question from Santosh Kumar. Doctor, since India has gone through Delta variant, which is now affecting the rest of the world, in that sense, how can India copy the rest of the world trend? A good we don't have to copy them. हमें यही कोशिश करना है कि हम डेल्टा वायरस से दोबारा से बहुत तेजी से इन्फेक्ट ना हो. Although that is difficult to completely prevent infection once it's there, but there are some things which we should all do as a responsible citizen. एक तो वही है कि हम हमेशा मास्क लगा के रखें. दूसरा ये कि जो भी पर्सन इन्फेक्ट हो रहा है उसे छुपाने की कोशिश ना करें. So आप उस समय छुट्टी लें, घर पे बैठें. So people who have mild infection are the ones who need to be more careful, and then they report so that proper contact tracing can happen, because we do not want it to spread beyond a certain small limit. So there are now few cases which are appearing. So I hope everyone reports that properly and therefore allows others to take proper precautions so that it doesn't spread. So preventing spread, there are certain measures if taken properly. मास्क पहन के रखना है, बहुत क्लोज स्पेसेस में पास नहीं रहना है. सो खुली जगह में बाहर घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो मास्क पहन के करिए. अगर लगता है कि इन्फेक्शन हुआ है, चेक कर सकते हैं तो करना है, लेकिन फिर आप अपने को थोड़ा दिन के लिए आइसोलेट कर लें. सो आई थिंक दीज 3-4 मेजर्स आर गुड इनफ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. So these are very practical. सबको फिर लॉकडाउन में नहीं आना पड़ेगा. If this happens, like Singapore model, they are able to isolate people nicely. But of course, there is a different system there.
Ma'am, there's a question from Tasnia. Is it that Pfizer vaccination is available in India? I, I do not know if it is. I don't think it is available officially, at least. No, just yes, to let our audience know, right now we don't have Pfizer vaccine available, but Sputnik will be soon available from September and October. Though we have received some doses of Sputnik from the from Russia, but manufacturing will soon be allowed by the month of September and October. Ma'am, there's another question from Santosh Kumar. I feel Kerala is witnessing huge wave because it remained unaffected during the second wave. Is this true? Um, so again, I'm not an epidemiologist, and I think it is still an enigma why Kerala is showing the rates it is, despite all the. I think one of the reasons may be that they had higher number of vulnerable population. That is one explanation. There may be other because there are a lot of the travel from outside, like they were more connected in different ways. So that's probably another reason. So I think there is a logic in saying that second wave was not as bad, but they did have a second wave as well. Still, Yes, they did. yeah. They did. I agree. Hmm. Ma'am, there's another question from Kedar Joshi. आजकल जुकाम बहुत से लोगों को हो रहा है, कैसे पता लगाए कि कोविड है या फिर जुकाम? बिना टेस्ट किए पता लगाना मुश्किल है क्योंकि प्रेजेंटेशन वैसे ही हो सकता है इन जनरल एटलीस्ट जो क्लासिकली डिस्क्राइब सिम्टम्स हैं कोविड में खांसी सूखी खांसी और फीवर ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है छींकना वगैरह ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है स्नीजिंग छींक आना वगैरह नहीं होता इट इज़ मेनली ड्राई कफ तो अगर आपको सूखी खांसी है और बुखार है अगर चेक करा सकते हैं तो कोविड के लिए चेक कराएं नहीं तो भी आप अज्यूम करें कि ये कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और नेसेसरी प्रिकॉशन लेके खुद को थोड़े दिन के लिए अच्छे से मास्किंग करें और हो सके तो आइसोलेट करें सो मेरा एडवाइस यही है हाई ग्रेड फीवर कफ इसके प्रोमिनेंट लक्षण हैं लेकिन ये माइल्ड फीवर से भी हो सकता है आजकल बहुत सारे अनयूजुअल सिम्टम्स भी लोगों को देखे गए हैं बहुत सारे लोग सेकेंड वेव में सिर्फ वीकनेस से प्रेजेंट किए हैं विदाउट मच फीवर तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन हो सकते हैं लेकिन अगर आपको जुकाम है तो कोई भी रीजन से आप अपने को आइसोलेट करिए और मास्क पहन के ही निकलिए कोशिश करिए कि घर में भी दूसरे लोग स्पेशली अगर एल्डरली लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे इंट्रैक्शन कम कर लें हाथ बहुत धोएं अगर आप खांसते छींकते वक्त तो जो यूजुअल प्रिकॉशन है एरोसोल स्प्रेड होने के वो सारे लें कोई भी इन्फेक्शन है वो ना स्प्रेड हो तो अच्छा है एंड दैट विल हेल्प सो हाथ बार बार क्लीन करें मास्क पहने रखें I think that is good enough precaution. मैम there's another question. विदेश टूर के लिए कोविशील्ड की सेकेंड डोज जल्दी से ले सकते हैं क्या? सो एक महीने के अंदर आप ले सकते हो कोविशील्ड की डोज डेफिनेटली लेकिन आई थिंक दैट्स डुएबल मुझे मालूम नहीं कि विदेश यात्रा के लिए अभी वो अप्रूव्ड है कि नहीं मतलब कोविशील्ड का अप्रूवल मिल जाएगा आप ले सकते हैं सेकेंड डोज विद इन अ मंथ ले सकते हैं एक महीने से ज्यादा जल्दी नहीं ले सकते 3 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है यू कैन टेक इट एट 4 to 6 weeks. Ma'am, before we move to our rapid fire, I would like to remind our audience that our expert is an endocrinologist. So, अगर आपको if you have any questions related to diabetes or you have any questions related to thyroid, then you all can shoot at us. Ma'am, let's move to some thyroid related questions. Thyroid disease gives you obvious symptoms. Hence, it is easy to diagnose. Is it true? Not true. Many times hypothyroidism may be silent. So you may have to screen in some patients, for example, pregnancy. But in advanced hypothyroidism, most of the time you will have symptoms and you will be able to tell. But many patients, even with very severe hypothyroidism, are not able to feel it. कई बार बहुत ज़्यादा भी TSH लोगों का बढ़ा होता है थायराइड डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद क्योंकि वो धीरे धीरे होती है तो वो नहीं रियलाइज करते हैं
कि उनको ये दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको पता है कि ये सिम्टम्स हैं और आपको थायराइड कराने की ज़रूरत है तो ज़रूर कराएं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थकान लग रही है, ज़्यादा नींद आ रही है, थोड़ा सूजन आ रहा है चेहरे पे या शरीर पे, थोड़ा वजन बढ़ रहा है, पीरियड्स अगर महिलाओं में अगर महीना टाइम पे नहीं आ रहा है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या गले में कोई सूजन दिख रही है, तो इन सारे ही केसेस में, कुछ लोगों में सिर्फ मांसपेशियों में दर्द, इन सब सिचुएशन में आप केवल एक सिंपल टेस्ट कराना है TSH, जो आसानी से हो जाता है, बहुत महंगा टेस्ट भी नहीं है, तो वो आप करा सकते हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट वैसे भी एक बार साल या 2 साल में एक बार TSH करा ले सकते हैं। जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन्हें ज़रूरी एक TSH कराना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। तो सिम्टम्स आते हैं लेकिन कई बार समझ नहीं आता क्योंकि वो धीरे-धीरे आते हैं। इट इज़ नॉट अ फ्लोरिड प्रेजेंटेशन। Ma'am, next question. Low thyroid hormone levels affect women only. Is this information true? सो थायराइड हार्मोन की कमी वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, पर मेन में भी हो सकती है, बहुत सारे मेन में भी होती है। वुमेन में उसका परसेंटेज ज़्यादा है। सो Ma'am, 10 में से Ma'am, okay, you go ahead. 10% of women are affected, so it's a high number. Men में भी हो सकता है। Ma'am, there's a question from Anuradha. She asked, every hair fall is due to thyroid. No, not true. थायराइड हार्मोन की कमी के बहुत सारे लक्षण हैं जिनको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। मतलब वो थायराइड के लिए स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। जैसे कि बाल झड़ना, ये थायराइड की कमी से भी होते हैं, लेकिन अगर आपका खाना पीना न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, खून की कमी है, कोई रीसेंट बीमारी हुई है, कोविड के बाद लोगों का हेयर फॉल बहुत बड़ा है क्योंकि रीसेंट इन्फेक्शन हेयर फॉल बढ़ाता है। ये या कई बार मौसम के चेंज से इफेक्ट होने लगता है, तो बहुत सारे रीजन से हेयर फॉल हो सकता है। थायराइड उनमें से एक कारण है। Can thyroid also cause stomach issues? थायराइड हार्मोन की कमी से, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, तो अगर थायराइड हार्मोन कम है तो ओवरऑल हमारे सारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो जो पेट की मोटिलिटी है वो भी कम होने लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कभी कभी पेट में दर्द वगैरह, मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम इज कॉन्स्टिपेशन। तो एक कॉमन सिम्टम है पेट इफेक्ट होना। Ma'am, is it true that one can stop thyroid medicines when the symptoms get better? अगर थायराइड हार्मोन की दवा आपको सही कारणों से शुरू की गई है, तो हर व्यक्ति जिसका TSH थोड़ा सा गड़बड़ है उसको हार्मोन की दवा नहीं शुरू करने की जरूरत है। कई बार लोग बहुत थोड़ा सा TSH बढ़ा है, एक बार बढ़ा है और दवा शुरू कर लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर TSH आपका बहुत ज्यादा नहीं है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हम कहते हैं, अगर TSH 5 से 10 के बीच में है तो 20 से 50% लोगों में वो 3-4 साल बाद नॉर्मलाइज भी हो सकता है, कुछ लोगों में वो प्रोग्रेस भी होता है। पर TSH 10 के ऊपर है तो हम इलाज शुरू करते हैं, और अगर हमने सही इंडिकेशन से इलाज शुरू किया है तो हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि थायराइड आपका कम हार्मोन बना रहा है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि अच्छा ये परमानेंट बीमारी है, कोई टेम्पररी डिविएशन नहीं है, क्योंकि TSH टेम्पररीली बहुत सारी बीमारियों में ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब हमें पूरा अश्योर हो गया कि अच्छा ये तो कोई और कारण नहीं है, थायराइड कम काम कर रहा है, तो वो फिर वो आगे दोबारा काम करना शुरू करे, इसकी संभावना नहीं होती, क्योंकि ये डाइट एक्सरसाइज से रिलेटेड बीमारी नहीं है। तो हम चाहें कि एक्सरसाइज और डाइट से इसे कंट्रोल कर लें, ऐसा नहीं होता। तो सही कारणों से अगर दवा शुरू की है तो वो हम लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट हमें देना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं, हम थायराइड को वापस से हार्मोन बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। थायराइड अगर नहीं काम कर रहा है, देयर इज राइट नाउ नो वे टू मेक इट वर्क अगेन। सो हम क्या करते हैं कि वो हार्मोन कम बना रहा है तो हम बाहर से रिप्लेस करते हैं, हम आउटसोर्स करते हैं थायराइड का काम। तो वो हमेशा देना पड़ता है, क्योंकि जब हमने दवा बंद करी तो फिर वापस से थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी। सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट if it's started for right reasons. Ma'am, there's another question. क्या 60 साल के बाद थायराइड की मेडिसिन देना चाहिए? अगर आपको थायराइड हार्मोन की ज्यादा कमी है तो देना चाहिए, लेकिन एज के साथ TSH की मात्रा बढ़ती है, तो कई बार 50, 60, 70 इयर्स के लोगों में TSH थोड़ी ज्यादा मिलती है, उनको इलाज नहीं करना है क्योंकि वो नॉर्मल वेरिएशन है। एज के साथ बहुत लोगों में TSH की मात्रा बढ़ जाती है।
अगेन TSH 10 से ऊपर है सिर्फ तभी दवा देनी चाहिए। TSH 10 के नीचे है तो अवॉइड करते हैं हम दवा देना, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस भी रहते हैं, खासकर एल्डरली में, क्योंकि ये उनमें हार्ट पे गलत असर होने का डर रहता है। तो हम अगर TSH काफ़ी ज़्यादा है तभी शुरू करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो एक तो नॉर्मल एज रिलेटेड वेरिएशन एंड मोर चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट, देयरफॉर वी स्टार्ट ओनली इफ TSH is more than 10. And there's another question. I'm already on thyroid medication, but still having fatigue and all. What can I do? आपकी डोज ठीक है कि नहीं चेक करना बहुत आसान है। आप एक TSH का लेवल चेक करिए। TSH का एक नॉर्मल रेंज होता है लैब टू लैब, लेकिन कई बार लोगों का अपना एक पर्सनल, बिकॉज हर व्यक्ति का बॉडी एक लेवल ऑफ TSH पे ज़्यादा सही महसूस करता है। तो कुछ लोगों को 4 या 5 TSH पे भी थकान रहती है, उनको 3 या 2 पे हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो नंबर 1 हम थायराइड की डोज सही एडजस्ट कर सकते हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो TSH चेक करने से हमें मालूम पड़ेगा कि उसमें कुछ पॉसिबिलिटी है क्या। नंबर 2, जैसा मैंने हेयर फॉल के लिए बोला, फटीग, थकान एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, कोई और रीजन तो नहीं है, इसे जरूर इवैल्यूएट करें, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में थकान होना बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है। विद कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, लोग जिस लेवल का काम करते हैं, थकान, बहुत सारे लोगों को मुझे ये बोलना पड़ता है कि आप थक रहे हो इसलिए थकान हो रही है, बिकॉज वो 12 घंटे काम कर रहे होते हैं। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर टेकिंग इनफ रेस्ट। थकान नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होता है कई बार, तो हमेशा बीमारी नहीं होती। Ma'am, talking about the diet and that should be consumed if you have thyroid, people assume that vegetables like broccoli, cabbage, and cauliflower should not be consumed. Is it true? तो ब्रोकली, कैबेज, इस ग्रुप की जो वेजिटेबल्स होती हैं, इनका थोड़ा सा थायराइड पे असर होता है। कैसे होता है? जब चूहों को बहुत सारा इसका जूस पिलाया जाता है तो देखा जाता है कि उनका थायराइड थोड़ा सा कम काम कर रहा है, लेकिन हम उतनी मात्रा में कभी भी नहीं खाएंगे। तो अगर एक केस रिपोर्ट है जिसमें एक औरत ने महीना भर तक रोज के रोज बहुत सारा बॉक चॉय खाया, फिर उसको थायराइड एकदम से बढ़ गया। पर अगर आप नॉर्मल रूटीन यूज में डेली थोड़ी सी अमाउंट में ब्रोकली, कैबेज, बॉक चॉय या सोयाबीन ले रहे हैं, दैट विल नॉट अफेक्ट द थायराइड। थोड़े से अमाउंट में उसका कोई असर नहीं आता। हम TSH अगर सही कंट्रोल कर रहे हैं तो ये सब सब्जियां बंद नहीं करनी है, क्योंकि इनके बहुत फायदे हैं। तो अगर हम थायराइड की वजह से ये सब्जियां बंद करते हैं तो हमें कुछ और मिनरल्स की एक्सेट्रा डेफिशिएंसी होने का डर है। सारी सब्जियां खाएं। थायराइड में सिर्फ एक ही प्रिकॉशन रखना है कि थायराइड की दवा खाली पेट खानी है, तो कुछ भी खाना पीना है तो आधे घंटे बाद खाना पीना है, ताकि दवा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप डेली ब्रोकोली खाते हैं आधा किलो टाइप, तो रोक सकते हैं। मे बी फ्रीक्वेंसी आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर दें। तो सब्जियां सारी ले सकते हैं। Moderation is the word. No? Ma'am, given that we are in an era of pandemic and COVID, I would like to relate COVID and thyroid. Hypothyroidism is always caused due to an underlying autoimmune condition. Are individuals with autoimmune thyroid disease at increased risk of COVID-19 infection? नहीं। सो जिनको ऑटो इम्यून बीमारी है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रांग है, वो थोड़ा कंफ्यूज है, बस वो अपना बॉडी और बाहर में थोड़ा डिफरेंस नहीं कर पा रहा है और अपने थायराइड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट इट्स वर्किंग वेरी वेल। तो जिसको थायराइड की परेशानी है उसको कोई कोविड का चांसेस ज्यादा है, ऐसा नहीं है। Ma'am, there's a question from Hakeem Abdullah. Is it okay to take Ayurvedic medications to control diabetes? Some patients are addicted to it and feel it's not harmful. मेडिसिन, कोई भी दवा आप किसी भी चीज के लिए ले रहे हैं, है ना, मतलब डायबिटीज के लिए या किसी भी चीज के लिए, मेरी सब लोगों को ये सलाह है कि कोई भी डिसीजन लाइफ में ले रहे हैं और खासकर अपने हेल्थ से संबंधित, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें। पहले तो ये देखें कि आप केवल डिसीजन इस आधार पे ना ले लें कि किसी व्यक्ति ने, कोई अनजान व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि ये दवा आपके में कारगर होगी। आपको ये देखना जरूरी है कि इस दवा से संबंधित क्या प्रमाण है, एविडेंस क्या है ना, क्योंकि जो दवाइयाँ हम यूज करते हैं वो बहुत सारी स्टडीज होती है, उन पे देखा जाता है कि ये दवा अगर कोई व्यक्ति 10 साल 15 साल ले तो उसको कोई ऑर्गन में डैमेज तो नहीं आएगा। केवल शुगर कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट नहीं है,
शुगर के मरीजों में जो भी दवा दी जाती है उसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है लॉन्ग टर्म में, नंबर 1। नंबर 2, दवाइयों से फायदा कितना है, क्योंकि हम शुगर इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि 20 साल बाद, 30 साल बाद या 40 साल बाद भी हम हेल्दी रहें। पता चला हमारी बीमारी ठीक है लेकिन दवाइयों ने कुछ नई परेशानियां खड़ी कर दी, तो वो दवाइयां पहले टेस्टेड होती हैं। अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड दवाइयां, टेस्ट के प्रॉपर कंडीशंस होते हैं, है ना। केवल 1 या 2 व्यक्ति का जो एविडेंस है वो काफी नहीं है, वो हमें जानना पड़ेगा कि ज्यादातर लोगों में जब ये दी जाती है एज कम्पेयर टू जिनमें नहीं दी जाती है, उसमें आपको शुगर में कितना फायदा है और कितने लॉन्ग टर्म उसके कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो ये सारी जितनी भी डायबिटीज की मेडिसिन साइंस में है, लोग एलोपैथी और आयुर्वेदिक की बड़े आर्टिफिशियल टर्म है। इनफैक्ट जो सबसे कॉमनली यूज्ड दवा है डायबिटीज की वो हर्बल मेडिसिन है ना। मेटफॉर्मिन जो है वो प्लांट से डिराइव होती है, लेकिन टेस्टेड है, हमें पता है 100 साल से चल रही है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें, लोगों की बातें ऐसे ही मत मान लीजिए किसी भी संबंध में, पहले जाके थोड़ा सा रिसर्च करना है। किसी ने क्लेम कर दिया कि नहीं हम ठीक कर देंगे आपकी बीमारी या ये दवाई से साइड इफेक्ट नहीं है, क्लेम्स के पीछे कोई तथ्य है क्या, ये हमेशा ये आपको बताएंगे कि आजकल फैक्ट चेक कैसे किया जाता है, बिकॉज गूगल में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सब कुछ सही नहीं होती ना, हर कोई व्यक्ति आपको सही बोलता है ना। तो उसके पीछे कोई गलत इंटेंशन से तो नहीं आपको वो दवा बेच रहा है, वो भी चेक कर लीजिए। I hope that we answered all your queries. I am sure that ma'am has given a very simple and positive answers to all of you. And before we end the show, we'll take last question, which is how frequently we need to get in touch with the doctor if we know that we have thyroid. Example, I have been having thyroid since 2 years and I haven't consulted the doctor. Once a year TSH testing. If your TSH is normal, that's okay, then you may or may not. So once a year consulting a doctor with your thyroid report is good, especially if the thyroid report is not within the range which the lab has prescribed. So yes. Thank you so much, ma'am, for these simple and optimistic words. I'm sure that our audience will be at a better position right now. And before we leave, can we have a final message from your side? We are still grappling with the virus, which is changing its form every day. एक वायरस है जो नया नया रूप बना के हमारे सामने आ रहा है, तो हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आई थिंक किसी भी बीमारी से लड़ने का तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और वाइज डिसीजंस लें, है ना। हम केवल सही चॉइसेस करके अपने को बहुत समय तक हेल्दी रख सकते हैं, वायरस से भी बच सकते हैं और बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस। Thank you so much, ma'am. It was a great pleasure to have you on the show. Before we leave, I would like to remind our audience, Health Patrol is a myth-busting platform where we bust health misinformation. And to check the veracity of any information, please send us your queries on WhatsApp. Connect us on our website, which is healthpatrol.in. You can subscribe to our YouTube channel. You can send us your request on Instagram channel, which is healthpatrol_.in. And we assure you that all your queries will be verified by our experts. Thank you so much for your time. Thank you so much for listening to us. Hope to see you again next Thursday. Thank you, ma'am.